ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? The topic on which we were having discussion in previous multiple classes, that was philosophy and features of Islamic finance. We already have done a lot in this philosophy and features of Islamic finance. So today we'll move ahead. But before going towards the today's plan, let me discuss a little bit about whatever we discussed in the last class, and that was actually the summary of last class. So we talked about philosophy of Islamic finance. 2 or 3 points of philosophy of Islamic finance were left, which we discussed in detail in the last class. Then we talked about debt versus equity, like the capital structure, whether we should add debt in our capital structure or not according to the Islamic finance. So we had a lot of discussion on that, and at the same time we had the conventional approach as well, कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है। उसके लिए वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंस थियरीज, और फिर उसको इस्लामिक फाइनेंस के साथ भी हम लोगों ने रिलेट किया। देन वी टॉक्ड अबाउट इस्लामिक बैंकिंग, जिसमें हम लोगों ने बिजनेस वर्सेस बेनेवलेंस की बात की। नॉर्मली इट इज़ अ कॉमन परसेप्शन कि इस्लामिक बैंकिंग शायद कोई जो है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और बेनेवलेंस के लिए होती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। But no, this is a pure business, and when it is a pure business, there isn't any argument that they would be conducting the business for the purpose of welfare only. Of course, they can give the amounts to the charity after getting the approval from the board, but this is not the ultimate objective of the Islamic banking, that they are there for the purpose of charity or benevolence. So we discussed a lot about it, and finally we concluded that Islamic banking is a pure business. Then we talked about exchange rules, that how exchange should be done amongst commodity and money, money to money, currency to currency, equal to equal, and hand to hand, and there were a lot of other perceptions as well, which we discussed in detail. So I hope you guys would be with me and you guys would have understood whatever we discussed in the last class. आज हम लोग थोड़ी सी आगे बात शुरू करते हैं. According to the plan of today's lecture, we'll discuss time value of money in Islamic finance. What does time value of money mean in Islamic finance? थोड़ी सी बात हमने लास्ट क्लास में की थी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अंदर आपके जो पैसे की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। फिर हम बात करेंगे मनी मॉनेटरी पॉलिसी एंड इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, और फिर आई विल ट्राई टू समराइज द होल चैप्टर विच इज़ फिलोसफी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। तो बात शुरू करते हैं, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन इस्लामिक फाइनेंस. There is almost a consensus among Sharia scholars that the credit price of a commodity can genuinely be more than its cash price. ये consensus है शरिया स्कॉलर्स का भी कि जो क्रेडिट प्राइस है उसको कैश प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए या ज़्यादा होती है, provided one price is settled before separation of the parties. लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो प्राइस है, एक प्राइस डिसाइड हो जाए जब तक पार्टी सेपरेट नहीं होती। मतलब जो कर्जा दे रहा है या कर्जे के ऊपर उसे ले रहा है, जब तक वो पार्टीज ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और जो प्राइस उन्होंने फाइनलाइज कर ली, उसके बाद ऑफ कोर्स वो प्राइस वुड बी एस्टैब्लिश्ड. अकॉर्डिंग टू मैनी जूरिस्ट्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइसेस इज अप्रूव्ड बाय NAS, क्लियर टेक्स्ट ऑफ द शरिया. जूरिस्ट के मुताबिक जो दो प्राइसेस का डिफरेंस है वो अप्रूव किया जाता है NAS के थ्रू, एंड NAS इज व्हाट, जो कि क्लियर टेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू शरिया. द इस्लामिक फिक अकेडमी ऑफ द OIC एंड शरिया बोर्ड्स ऑफ ऑल इस्लामिक बैंक्स अप्रूव द लीगैलिटी ऑफ दिस डिफरेंस. इस्लामिक फिक अकेडमी और जो OIC एंड शरिया बोर्ड्स हैं वो तमाम इसकी इजाज़त देते हैं इस्लामिक बैंक्स को, और अप्रूव करते हैं इसकी लीगैलिटी को भी, ये जो प्राइसेस के दरमियान डिफरेंस है. This is tantamount to the acceptance of time value of money in the pricing of goods. ये शो करता है कि जो हम प्राइसिंग कर रहे हैं, इस प्राइसिंग के दरमियान टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई ना कोई रोल है. What is prohibited in any addition to the price once agreed because of any delay in its payment? मना क्या है कि जो प्राइस एक दफ़ा डिसाइड हो गई और अगर पेमेंट डिले है तो पेमेंट डिले होने की वजह से उसके अंदर अगर कोई एडिशनल प्राइस ऐड होती है तो दैट इज प्रोहिबिटेड. This is because the commodity once sold on credit, इसलिए कि commodity जब एक दफ़ा बेच दी जाती है क्रेडिट के ऊपर,
generates debt and belongs to the purchaser on a permanent basis, and the seller has no right to reprice a commodity that he has sold and which does not belong to him. जब एक commodity बेच दी जाती है वो एक कर्जा जनरेट कर लेती है, अब वो परचेजर का के लिए परमानेंट बेसिस पे है। जब परमानेंट बेसिस पे है तो इसका मतलब है सेलर का अब उसके साथ कोई ताल्लुक एज सच उसकी ओनरशिप के हवाले से नहीं है। जब ओनरशिप के हवाले से उसका ताल्लुक नहीं है तो फिर उसको रीप्राइस कैसे कर सकता है? दिस इज इन द कस्टडी ऑफ कोर्स परचेजर नाउ, और वही उसकी ओनरशिप रखता है। एज दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। अब चूंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इस्लामिक फाइनेंस के अंदर है, वी मे डिस्कस इट इन डिटेल, इसको हम डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं। ज्यूरर्स अलाउ द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड क्रेडिट प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। ज्यूरर्स अलाउ करते हैं इस डिफरेंस को किसी भी कमोडिटी की कैश और क्रेडिट प्राइस के अंदर, कंसिडरिंग इट अ जेन्युइन मार्केट प्रैक्टिस। बोथ टाइम एंड प्लेस हैव देयर इम्पैक्ट ऑन द प्राइस। दोनों वक्त और जगह प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। A commodity sold for $100 in a posh area might be available for $50 in a middle class residential area. एक कमोडिटी जो $100 की बेची जाती है किसी भी पोश एरिया के अंदर, वो हो सकता है किसी जो एक मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया वहां पे $50 की बिक रही हो। तो ये जो प्लेस का डिफरेंस है that also matters in the pricing of the goods. Similarly, an object with a price of $100 in the morning might be available for $50 in the evening. अगर सुबह 100 का है तो शाम में हो सकता है 50 का हो। This is all acceptable in Sharia if caused by genuine market forces. ये तमाम शरीयत में इजाजत है अगर genuine market forces की बेसिस के ऊपर ये मामला चल रहा है। जैसे आप देखें, जैसे कभी इतवार बाजार में जाते हैं तो इतवार बाजार में अगर सुबह के टाइम आप लोग सब्जी खरीदने के लिए जाएं तो उसकी प्राइस इज डिफरेंट। जब हम शाम के वक्त जाते हैं वही खरीदने के लिए तो उसकी प्राइस डिफरेंट हो जाती है। क्यों? सुबह के टाइम एक तो सब्जी ताज़ी होती है और फिर ऑफ कोर्स कस्टमर्स ने भी आना होता है और वो प्राइस जितने की लेके आए होते हैं उसकी बेसिस के ऊपर उसका अपना मार्जिन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। शाम तक जो मैक्सिमम उनकी चीज़ होती है वो बिक जाती है, वो सब्जी फ्रेश भी नहीं रहती और ऑफ कोर्स अब उनकी मजबूरी होती है कि सारी की सारी बिक जाए। अब ऐसी सिचुएशन में मार्केट फोर्सेस उन लोगों को मजबूर करती हैं कि अपना मार्जिन डिक्रीज करें और औने पौने उसको बेच दें। तो इसलिए सुबह और शाम के अंदर प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं और शरीयत इनकी इजाजत भी देती है। Similarly, it is quite natural that the credit price of a commodity is more than its cash price at a point in time. इसी तरह ये भी quite natural है कि जो आपकी क्रेडिट प्राइस है किसी कमोडिटी की वो कैश प्राइस से ज़्यादा हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। While in forward contracts like Salam, the future delivery price is less than the spot price. लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जैसे सलाम के अंदर जो फ्यूचर डिलीवरी प्राइस है ये कम होती है स्पॉट प्राइस की निस्बत। The concept of time value of money in the context of Sharia is also established from the fact that Sharia prohibits mutual exchange of gold, silver or monetary values except when it is done simultaneously. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो है शरिया के तहत ये इस्टेब्लिश करता है कि शरिया रोकती है म्यूचुअल एक्सचेंज को गोल्ड, सिल्वर और मॉनेटरी वैल्यूज के जब तक वो साइमल्टेनियसली जो है वो एक्सचेंज ना की जाए। दिस इज बिकॉज अ पर्सन कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ अ करेंसी विच ही हैज रिसीव्ड व्हाइल ही हैज नॉट गिवन इट्स काउंटर वैल्यू फ्रॉम विच द अदर पार्टी कुड टेक बेनिफिट्स। ये इसलिए है कि बंदा जो कि इसका बेनिफिट लेता है करेंसी का वो उसने रिसीव कर ली, शायद उसकी काउंटर वैल्यू जो है वो ना दी हो विच द अदर पार्टी कुड टेक बेनिफिट, जिससे दूसरी पार्टी को फायदा हो सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलाम also provides ample illustration of the concept of time value of money through pricing of goods. ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलाम है ये भी एक इलस्ट्रेशन देता है बहुत वाज़े तौर पर जिसके अंदर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी की प्राइसिंग के बारे में बात समझ सकते हैं। सलाम इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच enables a commodity to be bought for immediate payment of the price and future delivery. सलाम एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो एनेबल करता है किसी भी कमोडिटी को कि उसको खरीदा जा सके इमीडिएट पेमेंट के साथ ऑफ द प्राइस एंड फ्यूचर डिलीवरी, और उसकी डिलीवरी जो है वो फ्यूचर में जाके हो। The basic element of this contract is that the price paid in advance for future delivery of the goods is genuinely less than the cash and carry price at the time the salam contract is executed.
जो बेसिक डिफरेंस है या जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसका ये है कि आप चीज़ के पैसे दे देते हैं लेकिन चीज़ की डिलीवरी आपको आखिर फ्यूचर में जाके मिलेगी। मतलब वो कैश एंड कैरी बेसिस के ऊपर मामला नहीं चलता, आपने आज कैश दे दी और कुछ अर्से के बाद आपको उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। इसी वजह से सलाम के अंदर जो आपकी फ्यूचर प्राइस होती है वो कम होती है और जो आपकी आज की प्राइस है वो ज़्यादा होती है। It further transpires from Sharia tenets that time valuation is possible only in business and trade of goods and not in the exchange of monetary values and loans or debts. शरिया फर्दर इसको एलेबोरेट करती है कि जो टाइम वैल्यूएशन है ये पॉसिबल है सिर्फ बिजनेसेस या ट्रेड ऑफ गुड्स के अंदर, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज या लोन या डेट के अंदर दिस इज नॉट पॉसिबल। Islamic economics has the genuine provision of converting money into assets on the basis of which one can measure its utility. Islamic economics के अंदर एक genuine provision मौजूद है पैसे को convert करने की किसी asset के अंदर on the basis of which one can measure its utility, जिसकी basis पर वो इसका फायदा या utility जो है वो measure की जा सकती है। But loaning is considered a virtuous act from which one cannot take any benefit. जबकि लोनिंग जो है एक वर्चुअस एक्ट समझा जाता है जिससे कोई पार्टी भी इससे फायदा नहीं ले सकती। While it concedes the concept of time value of money to the extent of pricing in credit sales, क्योंकि ये कंसीड करती है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, तो इसकी जो प्राइसिंग है क्रेडिट सेल की, इट डज नॉट अपहोल्ड जनरेटिंग रेंट टू द कैपिटल एज इंटरेस्ट डज इन क्रेडिट्स एंड एडवांसेस। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लीडिंग टू अ रेंटियर क्लास इन अ सोसाइटी। Valuation of the credit period for pricing the goods or their usufruct is different from the conventional concept of opportunity cost. ये जो वैल्यूएशन है क्रेडिट पीरियड की प्राइसिंग ऑफ गुड्स के अंदर या usufruct की, ये डिफरेंट है कॉन्वेंशनल कॉन्सेप्ट से जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं, और द टाइम वैल्यू और टाइम वैल्यू से जो कॉन्वेंशनल अप्रोच है उससे ये दिस इज डिफरेंट। कैसे? कॉन्वेंशनल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो दैट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। और जब भी हम लोग ऑफ कोर्स कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट बीच में आता है वो यही है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सेम नहीं होता हर एक के लिए। जैसे फर्ज करें मेरी एक्सेस जो है अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक है और वहां का रिटर्न है 30%, तो मैं 30% से कम के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी की अप्रोच सब्जी मंडी तक है तो ऑफ कोर्स वहां पे रेट ऑफ रिटर्न अगर 5% है, ही कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 5%। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसकी बेसिस के ऊपर आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव मेथड जो बेस्ट बचता है उसके तहत आप इन्वेस्ट किए लेते हो, एंड दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन इस्लामिक फाइनेंस में ये वाला कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। As such, markup in trade is permissible provided the Sharia rules relating to trade are adhered to. असल में जो मार्कअप है ट्रेड के ऊपर इसकी इजाजत है प्रोवाइडेड के शरिया रूल्स जो हैं इस ट्रेड से मैच करते हैं। बट इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू बीइंग एन इंक्रीज ओवर एनी लोन और डेट। लेकिन इंटरेस्ट की ममानियत है जिसमें आप लोन या डेट की वजह से इंटरेस्ट अप्लाई करें। Therefore, no time value can be added to the principal of a loan or a debt after it is created or the liability of the purchaser stipulated. इसलिए कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो प्रिंसिपल या लोन के ऊपर जो है वो ऐड नहीं हो सकती या डेट के ऊपर जब वो एक दफ़ा क्रिएट हो जाए और जो लाइबिलिटी ऑफ परचेजर है वो स्टिपुलेट हो जाए एक मरतबा। उसी को तो रिबा बोलते हैं या उसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं जिसकी इस्लाम में सख्ती से ममानियत फरमाई गई। टाइम इज इनवैल्यूएबल। वक्त ऑफ कोर्स इनवैल्यूएबल है। वंस वेस्टेड, एक दफा वेस्ट हो गया, इट कैन नॉट बी रिफर्बिश्ड, ये दोबारा से ऑफ कोर्स क्रिएट नहीं किया जा सकता। सो इट शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद मनी, इसको पैसे से कंपेयर नहीं होना चाहिए। विच इफ स्टोलन और स्नैच्ड कैन बी रीस्टोर्ड, जो कि अगर चोरी हो जाए या स्नैच हो जाए, खींच लिया जाए तो उसको हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं। इसलिए जो वक्त है वो उसकी वैल्यू जो है मॉनिटरी नहीं है, वक्त तो आपका इनवैल्यूएबल किस्म की चीज है। इन बिजनेस हाउएवर वन कीप्स इन माइंड द टाइम फैक्टर एज अ नेचुरल फिनोमेना टू स्ट्राइक अ फेयर बैलेंस बिटवीन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन बिजनेसेस के अंदर हम लोग एक टाइम फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करना इसलिए भी जरूरी होता है कि एक फेयर बैलेंस मेंटेन किया जा सके फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई के दरमियान।
On the basis of the above rationale, an overwhelming majority of Islamic economists believe that economic agents in an Islamic economy will have a positive time preference, and there will be indicators available in the economy to approximate the rates of their time preferences, generally determined by the forces of demand and supply. इसकी बेसिस के ऊपर जो आपके मेजॉरिटी इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं उनका यकीन है कि जो इस्लामिक इकोनॉमिक एजेंट्स हैं इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर वो एक पॉजिटिव टाइम प्रेफरेंस रखेंगे और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो कि अवेलेबल हैं इकोनॉमी के अंदर वो रेट्स डिटरमिन करेंगे टाइम प्रेफरेंसेस को जहन में रखते हुए, जनरली जो कि फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस जो है वो डिसाइड करा रही होती हैं. There is no justification to assume a zero rate of time preference in an Islamic economy. इसका ये भी मतलब नहीं कि हम जो टाइम प्रेफरेंस है उसको जीरो वेटेज दे रहे हैं या जीरो रेट उसमें बोल रहे हैं. एज मेड इन अ नंबर ऑफ स्टडीज ऑन इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन द इस्लामिक परस्पेक्टिव, जैसे जो कि बड़ी स्टडीज जो है इस्लामिक बिहेवियर की इस्लामिक परस्पेक्टिव के अंदर जो की गई उनके मुताबिक देयर इज जीरो रेट, जो कि ऑफ कोर्स जीरो रेट भी नहीं कहा जा रहा. तो यहाँ तक बात थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो कि इस्लाम के अंदर है कि वो क्या है. ऑफ कोर्स उसमें आप यही कर सकते हैं कि अगर क्रेडिट सेल जो है वो और जो आपकी आज की सेल है, जो आपकी कैश सेल है, उन दोनों के दरमियान प्राइसिंग का डिफरेंस इज अलाउड, लेकिन ये लोन या बाकी चीज़ों के ऊपर अलाउड नहीं है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के प्रिंसिपल के तहत नहीं. ऑफ कोर्स डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस खुद ब खुद उसको डिसाइड करा रही होती हैं. सलाम के केस के अंदर ऑफ कोर्स द थिंग इज डिफरेंट और वो हम लोग डिस्कस कर चुके. नाउ द नेक्स्ट थिंग, मनी, मॉनिटरी पॉलिसी एंड इस्लामिक फाइनेंस. पैसा, मॉनिटरी पॉलिसी और इस्लामिक फाइनेंस क्या है. मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ कोर्स इसको ऐसे लिया जाता है कि ये एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिसका एक ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी होता है. अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है कि या मार्केट में पैसा दे दिया जाता है या मार्केट से पैसा उठा लिया जाता है. इसके बारे में इस्लामिक फाइनेंस क्या बोलता है, तो लेट्स डिस्कस दैट. Money is the most strategic factor in the functioning of any financial system. पैसा जो है ये मोस्ट स्ट्रेटेजिक फैक्टर है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए. द स्टेटस, वैल्यू, रोल एंड फंक्शंस ऑफ मनी इन इस्लामिक फाइनेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन कन्वेंशनल फाइनेंस. इसका स्टेटस, इसकी वैल्यू, इसका रोल और इसके फंक्शंस जो हैं पैसे के इस्लामिक फाइनेंस के अंदर डिफरेंट है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फाइनेंस. In the conventional system, money is considered a commodity. Conventional system में पैसे को एक commodity समझा जाता है. That can be sold or bought and rented against profit. जिसको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है या रेंट आउट किया जा सकता है प्रॉफिट के बदले में. और रेंट दैट वन पार्टी हैज टू पे. और कर्जा जो कि एक पार्टी को देना पड़ता है किराया, irrespective of the use or role of the lent money in the hands of the borrower. इस चीज से टोटली कता नजर होकर कि उसका इस्तेमाल क्या है जिस बंदे ने उसको बोरो किया. As this is not the case in Islamic finance, चूंकि ये इस्लामिक फाइनेंस में ऐसा नहीं है, the philosophy, principles and operation of Islamic finance differ to a large extent from the principles and operation of conventional finance. क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस में ऐसा नहीं है, इसलिए इसकी फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स और जो ऑपरेशन है इस्लामिक फाइनेंस का वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम कन्वेंशनल फाइनेंस प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशंस. एक्सपर्ट्स इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स कंसीड द एडवांटेजेस ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इस्लामिक इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कंसीड करते हैं पैसे के एडवांटेजेस को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. The Holy Prophet, peace be upon him, himself favored the use of money in place of exchanging goods with goods. हजूर सल्लम ने भी फेवर किया है पैसे को, बजाय इसके कि गुड्स के बदले गुड्स दी जाएं, पैसे के बदले उसको एक्सचेंज किया जाए. The prohibition of riba al-fadi in Islam is a step towards the transition to a money economy and is also a measure directed at making barter transactions rational and free from the elements of injustice and exploitation. ये जो रिबा अल-फद्ल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स ट्रांजिशन ऑफ मनी इकोनॉमी, कि जो पैसे वाली इकोनॉमी है उसके अंदर मूव किया जाए. एंड इज ऑल्सो अ मेजर डायरेक्टेड टू मेकिंग बार्टर ट्रांजेक्शंस, और एक ऐसा मेजर है जो कि डायरेक्ट करता है अबाउट बार्टर ट्रांजेक्शंस और फ्री है फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन.
चूंकि पैसा अगर एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस के चांसेस जो है वो किसी हद तक रिमूव हो जाते हैं. अब इन मनी मॉनिटरी पॉलिसी एंड इस्लामिक फाइनेंस, इसके अंदर कुछ चीदा बातें डिस्कस करते हैं. वेरी फर्स्ट वन इज स्टेटस ऑफ पेपर मनी. इस्लामिक फाइनेंस में पेपर मनी का क्या स्टेटस है? एज द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड मनी. चूंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये पैसे के गिर्द घूमता है, दिस ऑथर डिसाइडेड टू डिस्कस द मैटर ऑफ मनी एज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑन द फीचर्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस. ऑथर ने भी और मैंने भी इसीलिए इसको डिसाइड किया कि हम यहाँ पर इसको भी डिस्कस करें. द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स यूज्ड एज मनी एंड मेटालिक मनी टू पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी. ये जो हमारे पास पैसे की आज की फॉर्म है ये इवॉल्व हुई है मुख्तलिफ जो इकसाम है टाइप्स ऑफ गुड्स की, जिसमें पैसा भी है, मेटालिक मनी भी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी है. मनी इन द प्रेजेंट फॉर्म or the currency notes in vogue are a kind of थमान. जो पैसा हमारे पास आज है जो कि करेंसी नोट्स की फॉर्म में है, इसको ये थमान की एक काइंड है. a unit of account to serve as the price of anything. थमान का मतलब कि एक यूनिट है जो कि प्राइसिंग के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ की. जस्ट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू बी इन द पास्ट. जैसे पहले गोल्ड और सिल्वर इस्तेमाल होते थे पास्ट में, आज करेंसी नोट इस्तेमाल होते हैं. In this form, it is wanted only for exchange and payments and not for itself. इसलिए ये जो है इसमें इसकी जो वांट है वो सिर्फ एक्सचेंज की है या पेमेंट्स की है, इसके अपने लिए नहीं है. As it has no intrinsic value. चूंकि पैसे की अपनी कोई intrinsic value नहीं होती, और जब intrinsic value नहीं है तो उसको बेचा या खरीदा नहीं जा सकता. Accordingly, the present fiat and fiduciary money represents money value for all purposes of making payments. इसलिए ये जो प्रेजेंट फायाट या फिड्यूशरी मनी है ये रिप्रेजेंट करती है मॉनेटरी वैल्यू को तमाम पर्पसेस के लिए जितनी भी पेमेंट्स की जाए. द करेंसीज ऑफ ऑल कंट्रीज आर अनलिमिटेड. लीगल टेंडर एंड क्रेडिटर्स आर ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट देम फॉर रिकवरी ऑफ डेट. करेंसीज जो हैं तमाम मुल्कों की ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर की हामिल होती हैं और क्रेडिटर्स जो है वो ऑब्लाइज होते हैं इनको एक्सेप्ट करके और रिकवरी ऑफ डेट के अंदर. लिंकिंग मनी टू प्रोडक्टिव पर्पसेस ब्रिंग्स इनटू एक्शन लेबर एंड अदर रिसोर्सेज बेस्टोड बाय अल्लाह टू इनिशिएट अ प्रोसेस फ्रॉम विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड बेनिफिट्स पास्ड ऑन टू सोसाइटी. जब हम लिंक करते हैं पैसे को प्रोडक्टिव पर्पसेस के साथ, तो यहाँ पर जो एक्शन लेबर है एंड जो दूसरे रिसोर्सेज हैं जो खुदा की तरफ से दिए गए, ये एक प्रोसेस को इनिशिएट कराते हैं जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं और उनसे बेनिफिट जो है वो पास ऑन होता है सोसाइटी की तरफ. देयरफॉर पेपर मनी इज सब्जेक्ट टू ऑल द टेनेट्स ऑफ शरिया रिलेटिंग टू रिबा, डेट्स, ज़कात एटसेट्रा. इसलिए पेपर मनी जो है ये तमाम शरिया के असूलों के मुताबिक जायज़ है और ये रिलेट करती है रिबा के साथ, डेट के साथ या फिर ज़कात के साथ भी. वन कैन नॉट सेल अ $10 बिल फॉर $11. कोई भी $10 का बिल $11 का नहीं बेच सकता, बिकॉज द बिल रिप्रेजेंट्स प्योर मनी एंड हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू. चूंकि बिल जो है ये प्योर मनी समझा जाता है और इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती. नोट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर करेंसी कैन बी एक्सचेंज इक्वल फॉर इक्वल. किसी भी करेंसी के नोट्स जो हैं वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं इक्वल फॉर इक्वल बेसिस के ऊपर. करेंसी नोट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर कंसिडर्ड मॉनेटरी यूनिट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड देयरफॉर कैन बी एक्सचेंज विदाउट द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ बाय अल सर्फ करेंसी एक्सचेंज. करेंसी नोट्स जो हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज के हैं, इनको भी मॉनेटरी यूनिट्स कंसिडर किया जाता है और डिफरेंट स्पीशीज के तौर पर ट्रीट किया जाता है. इसलिए इनको एक्सचेंज किया जा सकता है किसी भी कंडीशन ऑफ इक्वालिटी के बगैर, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ बाय अल सर्फ, जो कि करेंसी एक्सचेंज की कुछ कंडीशंस होंगी उनको फॉलो करते हुए. ब्रीफली डिस्कस्ड इन फोरगोइंग पैराग्राफ्स, जिनको बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे. दैट इज हैंड टू हैंड, मतलब एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो. द शरीयत एपलेट बेंच ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट सेज इन दिस रिगार्ड. शरीयत एपलेट बेंच जो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का, वो इसके बारे में कहता है
Today's paper money has practically become almost like natural money. आज की जो पेपर मनी है वो नेचुरल मनी के बराबर आ चुकी है, इक्वल इन टर्म्स ऑफ इट्स फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज एंड क्रेडिबिलिटी टू द ओल्ड सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स. और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो गोल्ड और सिल्वर के बराबर है जो कि पास में इस्तेमाल होते थे. It will therefore be subject to the injunctions laid down in the Quran and Sunnah which regulated the exchange or transactions of gold and silver. इसलिए ये कुरान और सुन्ना के इंजंक्शंस के मुताबिक काम करेगी जो कि एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के साथ रिलेट करते हैं. The Islamic Fiqh Council of the OIC in its third session that was from 11th to 16th October 1986 also resolved that paper money was real money. इस्लामिक फिक काउंसिल जो है OIC की, इसने भी अपने तीसरे सेशन में जो कि 11 से 16 अक्टूबर तक रहा 1986 में रिजॉल्व किया कि जो पेपर मनी है ये रियल मनी है, पोजेसिंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, जिसमें तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं वैल्यू के, एंड सब्जेक्ट टू शरिया रूल्स गवर्निंग गोल्ड एंड सिल्वर. और जो शरिया रूल्स हैं गोल्ड और सिल्वर के वो इसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं, वेजा वेज रिबा, ज़कात, सलाम एंड ऑल अदर ट्रांजैक्शंस, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन शामिल हो सकती है जो कि ज़कात से रिलेट करती हो, रिबा से रिलेट करती हो, सलाम से, या कोई भी और ट्रांजैक्शन. सेकेंड थिंग इज ट्रेडिंग इन करेंसीज. क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? मनी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इस्लामिक फाइनेंस. अब इसका सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रेडिंग इन करेंसीज. Paper currencies cannot be sold or bought like goods having intrinsic value. पेपर करेंसी को खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता जैसे किसी और चीज को खरीदा बेचा जा सकता है उन जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो. द शरिया हैज ट्रीटेड मनी डिफरेंटली फ्रॉम कमोडिटीज. शरीयत ने रुपए को या पैसे को डिफरेंट ट्रीट किया है कमोडिटीज से, स्पेशली ऑन टू स्कोर्स, दो स्कोर्स की बेसिस पर. फर्स्ट, money of the same denomination is not held to be the subject matter of trade. पहली तो ये कि जो पैसा है उसको subject matter of trade नहीं बनाया जा सकता like other commodities, बाकी commodities की तरह. Its use has been restricted to its basic purpose. इसका जो use है उसको restrict किया गया है इसके basic purpose के साथ, that is to act as a medium of exchange. हम इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड अ मेजर ऑफ वैल्यू. ऑफ कोर्स वैल्यू मेजरिंग के लिए भी करेंसी इस्तेमाल होती है. सेकंड, ये तो थी पहली बात. सेकंड, इफ फॉर एक्सेप्शनल रीजंस मनी हैज टू बी एक्सचेंज फॉर मनी और इट इज बोरोड. सेकेंडली ये है कि अगर किसी एक्सेप्शनल रीजंस के तहत पैसे को पैसे ही से एक्सचेंज करना पड़े या इसको उधार लेना पड़े, द पेमेंट ऑफ बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल. जो पेमेंट्स हैं वो दोनों साइड्स के ऊपर बराबर होंगी, सो दैट इट इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस इट इज नॉट मेंट फॉर, ताकि ये इसलिए इस्तेमाल ना हो सके जिस पर्पस के लिए ये नहीं है. दैट इज ट्रेड इन मनी इटसेल्फ, जो कि पैसे के अंदर ट्रेड हो जाए इसके अपने तौर पर ही. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग इन गुड्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ वेरियस करेंसीज, Sheikh Muhammad Taqi Usmani in SAB judgment says the commodities can be different qualities. Commodities जो हैं वो different qualities की हो सकती हैं according to Sheikh Muhammad Taqi Usmani in SAB judgment. Therefore, transactions of sale and purchase are effected on an identified particular commodity. इसलिए ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल या परचेज जो हैं ये इफेक्ट होती हैं किसी भी आइडेंटिफाइड पर्टिकुलर कमोडिटी के साथ. मनी हैज़ नो क्वालिटी एक्सेप्ट दैट इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू और अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पैसे की कोई और क्वालिटी नहीं है सिवाय इसके कि ये मेजर ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल होता है या मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल होता है. ऑल यूनिट्स ऑफ मनी ऑफ द सेम डिनोमिनेशन आर 100% इक्वल टू ईच अदर. तमाम यूनिट्स ऑफ मनी जो हैं जिनकी सेम डिनोमिनेशन हो वो 100% इक्वल होते हैं एक दूसरे के. इफ ए हैज परचेज अ कमोडिटी फ्रॉम बी फॉर ₹1000, अगर ए ने कमोडिटी परचेज की है बी से 1000 रुपए की, ही कैन पे एनी नोट्स ऑफ रुपी अमाउंटिंग टू ₹1000. वो कोई भी नोट उसको दे सकता है जो कि 1000 रुपए के बराबर होते हों.
This real nature of money, which should have been appreciated as a fundamental principle of the financial system, remained neglected for centuries. ये जो real nature of money है जिसको अप्रिशिएट होना चाहिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, ये नेग्लेक्टेड रही सदियों तक. बट इट इज़ नाउ इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज्ड बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट. लेकिन अब इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है बाय द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट. प्रोफेसर जॉन ग्रे ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर जॉन ग्रे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, इन हिज रीसेंट वर्क फॉल्स डॉन हैज़ रिमार्क्ड, अपने बिल्कुल रिसेंट काम के अंदर जिसको फॉल्स डॉन बोला जाता है, उन्होंने कहा, मोस्ट सिग्निफिकेंटली परहैप्स transactions on foreign exchange markets have now reached the astonishing sum of around 1.2 trillion a day. ये जो ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हैं ये पहुंच चुकी हैं 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स अ डे, एक दिन में, ओवर 50 टाइम्स द लेवल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जो कि 50 टाइम्स है पूरी दुनिया के ट्रेड का. अराउंड 95% ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स आर स्पेकुलेटिव इन नेचर. इनकी जो 95% ट्रांजेक्शन्स है वो स्पेकुलेटिव होती हैं अपनी नेचर में. मैनी यूजिंग कॉम्प्लेक्स न्यू डेरिवेटिव्स, बहुत सी जो इस्तेमाल होती हैं वो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे बेस करते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती हैं. दिस वर्चुअल फाइनेंशियल इकोनॉमी हैज अ टेरेबल पोटेंशियल फॉर डिसरप्टिंग द, ये जो वर्चुअल फाइनेंशियल इकोनॉमी है इसमें एक टेरेबल पोटेंशियल मौजूद है जो कि खराब कर सकती है अंडरलाइंग रियल इकोनॉमी को. एज सीन इन द कोलैप्स इन 1995 ऑफ बेरिंग्स ब्रिटेन्स ओल्डेस्ट बैंक, जो कि देखा भी गया इन 1995, जो कि बेरिंग्स ब्रिटेन ओल्डेस्ट बैंक था जो सबसे ज्यादा. द इवल रिजल्ट्स ऑफ सच एन अननेचुरल ट्रेड वर पॉइंटेड आउट बाय इमाम अल गजाली 900 years ago in the following words. ये जो बुरे रिजल्ट्स हमारे पास हैं इनको इमाम गजाली ने 900 साल पहले इन अल्फाज के अंदर बयान किया था. रिबा इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम अंडरटेकिंग रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. रिबा या इंटरेस्ट इसलिए मना फरमाया गया क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करता है लोगों को रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने से. दिस इज बिकॉज व्हेन अ पर्सन having money is allowed to earn more money on the basis of interest. ये इसलिए कि जब एक बंदे को इजाज़त दे दी जाती है पैसे पैसे से मजीद पैसा अर्न करने की इंटरेस्ट की बेसिस पर, इधर इन स्पॉट और इन डेफर्ड ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो स्पॉट पे हो चाहे वो डेफर्ड ट्रांजेक्शन्स पे हो, इट बिकम्स ईजी फॉर हिम टू अर्न विदाउट बॉदरिंग हिमसेल्फ टू टेक पेन्स इन रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये उसके लिए आसान हो जाता है पैसा कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से, रियल पेन लिए बगैर पैसा कमाना और अपने आप को बॉदर करने के कि वो किसी मुश्किल में डाले. आसान हो जाता है पैसा कमाना, बस ठीक है किसी को दो, उससे इंटरेस्ट लो और ऑफ कोर्स अपना प्रॉफिट जेब में डालो. दिस लीड्स टू हैम्परिंग द रियल इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. ये हैम्पर करता है रियल इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी को, because the interest of humanity cannot be safeguarded without real trade skills. चूंकि इंसान का इंटरेस्ट जो है, इंसानियत का इंटरेस्ट जो है, उसको सेफ गार्ड नहीं किया जा सकता जब तक सही मानों में ट्रेड स्किल्स ना हो, इंडस्ट्री ना हो और उसकी कंस्ट्रक्शन ना हो. तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ट्रेडिंग है करेंसी की, हाउ दैट मूव्स. आगे बात करते हैं. द थर्ड थिंग इज क्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर कैसे पैसा क्रिएट होना चाहिए. द मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज इन एनी इकोनॉमी हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू देयर इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मनी. मॉनिटरी और क्रेडिट पॉलिसीज जो हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल सिस्टम की फंक्शनिंग के ऊपर, और इनका इम्पैक्ट होता है क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर भी. एज अगेंस्ट बुलियन मनी, पेपर और फिड्यूशरी मनी कैन बी क्रिएटेड simply by ledger entries or the issuing of paper securities and without regard to a corresponding increase in goods and services in an economy. बुलियन मनी
के अगेंस्ट पेपर या फिडुशियरी मनी जो है ये क्रिएट की जा सकती है सिंपली बाय लेजर एंट्रीज, लेजर में एंट्रीज करने से, या पेपर्स को पेपर सिक्योरिटीज इशू करने से, या विदाउट रिगार्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन इकोनॉमी में सर्विसेज या गुड्स को इंक्रीज के बगैर पैसा क्रिएट किया जा सकता है. दिस लीड्स टू डिस्टॉर्शंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ सेगमेंट इन सोसाइटी बाय अदर्स. ये लीड करता है डिस्टॉर्शन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ सेगमेंट इन सोसाइटी बाय अदर्स, दूसरों से. In the Islamic financial system, where exploitation of one by another is strictly prohibited, Islamic financial system के अंदर जहां पर एक की exploitation दूसरे से सख्त तरीके से ममानियत है कि एक की कॉस्ट के ऊपर दूसरे को फायदा नहीं लेना चाहिए. The supply or growth of money or credit should match the supply of goods and services. ये जो in the Islamic financial system where exploitation of one by another is strictly prohibited, the supply and growth of money or credit, ये जो supply of growth या money है या जो है वो credit के ऊपर, इसको मैच करना चाहिए supply of goods and services के साथ. Of course, इनके दरमियान में बैलेंस होना चाहिए. There might be some minor mismatches, छोटे छोटे से mismatches हो सकते हैं, but persistent mismatches are not consistent. लेकिन ये जो मुस्तकिल मिसमैचेस आ जाते हैं ये ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट नहीं है विद द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक फाइनेंस. दीज आर नॉट अलाउड इन इस्लामिक फाइनेंस एज दे जनरेट डिस्टॉर्शंस इन द पेमेंट सिस्टम एंड इनजस्टिस टू एनी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट्स. क्योंकि ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं पेमेंट सिस्टम के अंदर और इनजस्टिस क्रिएट करते हैं टू एनी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी पार्टीज हैं उनमें से किसी के साथ भी. Of all the features of Islamic financial instruments, one stands out distinctly that these instruments must be real asset based. Islamic financial instruments के features में से एक feature तो सबको बिल्कुल clear है, that is कि instruments जो हैं इनको real asset base होना चाहिए. This means that Islamic banks are not able to create money out of nothing or without the backing of real assets. कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं ये पैसा क्रिएट नहीं कर सकते जब तक उसके पीछे किसी एसेट की बैक ना दें, एज इज द केस इन द कन्वेंशनल सिस्टम टुडे. जबकि कन्वेंशनल सिस्टम में ऑफ कोर्स आप एसेट वो सिक्योर हो या ना हो दैट डजंट मैटर. दे कैन ओनली सिक्योरिटाइज देयर एसेट बेस्ड ऑपरेशंस फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग लिक्विड फंड्स, ट्रांसफरिंग देयर ओनरशिप टू द सिक्योरिटी होल्डर्स along with their risk and reward. The financing of government budget deficits by Islamic banks and financial institutions will not be possible until the governments have sufficient real assets to raise funds in a Sharia compliant manner or for the conversion of debt stock into Sharia compliant securities. ये जो फाइनेंसिंग टू गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट में अगर डेफिसिट है तो उसकी फाइनेंसिंग के लिए इस्लामिक बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसी वक्त इनको करेंगे जब उनके पास इतने एसेट्स अवेलेबल हों जिनसे उस कर्जे को बैक किया जा सके, और वो जो कन्वर्जन है डेट स्टॉक की शरिया कंप्लायंट सिक्योरिटीज के अंदर उनको करना पड़ेगा अगर वो इस्लामिक बैंक से फाइनेंसेस लेना चाहते हैं. टू इंश्योर दिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेटर्स टू मॉनिटर द 3 सोर्सेज ऑफ मॉनिटरी एक्सपेंशंस. इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेटर्स के लिए कि मॉनिटर करें 3 सोर्सेज ऑफ मॉनिटरी एक्सपेंशन, जिसमें क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट बजटरी डेफिसिट्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, the major source of expansion, the secondary credit creation by commercial banks, and the exogenous factors. The central bank would gear its money policy to the generation of growth in the money supply. Central bank जो है ये अपनी monetary policy gear करेगा growth generate करने के लिए money supply के अंदर, which is neither inadequate nor excessive, but this sufficient to exploit fully the capacity of the economy to supply goods and services for broad based welfare. जो कि inadequate तो of course नहीं होगा, ना ही excessive होगा, लेकिन sufficient होगा exploit करने के लिए full capacity of economy को, जिसके अंदर supply of goods और services जो हैं ये broad based welfare के लिए इस्तेमाल होती हैं. Commercial banks deposits constitute a significant part of the overall money supply. कमर्शियल बैंक्स जो हैं ओवरऑल मनी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखे होते हैं. दीज डिपॉजिट्स में बी प्राइमरी डिपॉजिट्स,
ये डिपॉजिट्स प्राइमरी डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, विच प्रोवाइड द बैंकिंग सिस्टम विद द बेस मनी, जो कि बैंकिंग सिस्टम को एक बेस मनी प्रोवाइड करते हैं. कैश इन वॉल्ट प्लस डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक और द डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, which in a proportional reserve system represent money created by commercial banks in the process of credit extension and constitute a source of monetary expansion. जिसमें कैश एंड वॉल्ट और डिपॉजिट्स हैं सेंट्रल बैंक के या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स हैं जो कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम जनरेट करते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं पैसा जो कमर्शियल बैंक से क्रिएट हुआ इस प्रोसेस के अंदर, जिसमें क्रेडिट एक्सटेंशन भी शामिल है और एक सोर्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन को भी इंश्योर करते हैं. Since derivative deposits also lead to an increase in money supply, चूंकि डेरिवेटिव डिपॉजिट्स जो हैं ये भी मनी सप्लाई में इंक्रीज पैदा करते हैं, the expansion in derivative deposits needs also to be regulated if the desired monetary growth is to be achieved. इन डेरिवेटिव डिपॉजिट्स में भी एक्सपेंशन को रेगुलेट करना जरूरी है अगर हमें मॉनेटरी ग्रोथ को अचीव करना है इकोनॉमी के अंदर. This could be accomplished by regulating the availability of base money to the commercial banks. इसको पूरा किया जा सकता है by regulating and availability of base money of the commercial banks and restricting the banks from making the cash reserves. और banks को restrict करके कि वो cash reserves अपने पास ना रखें, ineffective through their reserve sweep programs. अपने reserve sweep programs के through उनको ineffective ना रखें. Corrective measures would be needed to set aside the impact of exogenous factors as far as possible. Corrective measures की जरूरत पड़ेगी अगर हम इनके impacts जो हैं उनको साइड पे करना चाहें जितना भी possible हो. These measures would include the use of monetary tools. इन measures में use of monetary tools शामिल होगा. For example, mopping up liquidity in case the money supply increases due to capital inflows and investing the funds in commodity producing avenues so that the increase in money supply is matched by an increase in the supply of goods and services with a proper gestation period and in the long run. जिसकी मिसाल है mopping up liquidity in case of money supply increase जब की जाती है due to capital inflows और फंड्स की इन्वेस्टमेंट कमोडिटी प्रोड्यूसिंग एवेन्यूज के अंदर, ताकि इंक्रीज इन मनी सप्लाई जो है उसको मैच किया जा सके इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ या सर्विसेज के साथ एक प्रॉपर जेस्टेशन पीरियड में और लॉन्ग रन में. द होल डिस्कशन ऑन द क्रिएशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द अवेलेबल लिटरेचर ऑन इस्लामिक फाइनेंस इज सेंटर्ड ऑन द assumption दैट द इस्लामिक फाइनेंस मॉडल इज बेस्ड ऑन अ 2-tier मुदारबा एंड शिरका सिस्टम फॉर द मोबिलाइजेशन एंड यूज ऑफ फंड्स. जितनी भी डिस्कशन है इस्लामिक लिटरेचर के अंदर क्रिएशन ऑफ मनी से रेलिवेंट, वो दो टीयर्स बताते हैं, मुदारबा और शिरका सिस्टम, जो कि मोबिलाइजेशन ऑफ एंड यूज ऑफ फंड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. ऑल्दो द इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इन वोग इज नॉट बेस्ड ऑन दिस मॉडल, ऑल्दो जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है वो इस मॉडल पे बेस नहीं करता, एंड इस्लामिक बैंक्स आर यूजिंग फिक्स्ड इनकम मोड्स, और इस्लामिक बैंक्स जो हैं ये फिक्स इनकम मोड्स इस्तेमाल करते हैं. येट इट इज वर्थवाइल टू ब्रीफली डिस्कस द स्टांस ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिस्ट ऑन द इंपॉर्टेंट एरिया विद फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस. फिर भी ये वर्थवाइल होगा ब्रीफली डिस्कस करना ये जो इस्लामिक इकोनॉमिस्ट का स्टांस है इस इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर जिसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं. The institution of credit and bank money has been an important key issue discussed by Islamic economists. ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रेडिट और बैंक मनी है ये एक इम्पॉर्टेंट की इशू है जो कि डिस्कस किया गया है बाय इस्लामिक इकोनॉमिस्ट. अर्ली राइटर्स ऑन इस्लामिक इकोनॉमिक्स सॉ समथिंग मॉरली रॉन्ग इन क्रेडिट मनी. जो शुरू के लिखने वाले हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स के ऊपर, उन्होंने कुछ मॉरली गलत इसको देखा है क्रेडिट मनी को. सम डाउटेड इट्स नीड एंड एस्क्राइब्ड इट्स proliferation to the vested interest of the banks that gain a lot out of thin air or of no air at all. कुछ शक है इसकी जरूरत पर और एस्क्राइब किया है प्रोलिफरेशन को जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट है बैंक्स का जो कि गेन करता है अलॉट आउट ऑफ थिन एयर और ऑफ नो एयर एट ऑल. क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल परचेजिंग पावर एंड टेक एडवांटेज ऑफ द डिमांड फॉर इट.
जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल परचेसिंग पावर क्रिएट की जाती है और फिर उसकी डिमांड भी क्रिएट की जाती है. दिस डिमांड इज ऑल्सो illicitly created by those who have managed to liquidate their assets and prefer to enjoy a guaranteed income against their withheld money. They advocate a 100% reserve system. ऐसे लोग एडवोकेट करते हैं 100% रिजर्व सिस्टम को. Such economists say that if any extra money is needed for financing fresh transactions, it should be issued by the central bank. अगर कोई फ्रेश ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी पैसा चाहिए होगा तो उसको सेंट्रल बैंक इशू करेगा. Those who favor credit creation have argued that in the Islamic system of banking, credit will be created only to the extent that genuine possibilities of creating additional wealth through productive enterprises exist. वो लोग जो क्रेडिट क्रिएशन को फेवर करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि इस्लामिक सिस्टम ऑफ बैंकिंग के अंदर जो क्रेडिट है वो क्रिएट होगा सिर्फ उस हद तक जितना उनके पास इसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है. डिमांड फॉर प्रॉफिट शेयरिंग अकोमोडेशन विल बी लिमिटेड by the extent of the available resources, and the bank's ability to create credit will be called into action only to the extent of this demand. ये जो डिमांड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग है ये भी अकोमोडेट की जाएगी इसकी लिमिट के साथ कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बैंक्स के और कितनी क्रेडिट क्रिएट करने की उनके पास अहलियत है, जिससे टू द एक्सटेंट ऑफ दिस डिमांड, जहां से पूरी हो सके, सब्जेक्ट टू the constraint imposed by the profit expectations that satisfy the banks and their depositors. और कितना प्रॉफिट जनरेट किया जाएगा जिसके थ्रू वो जो बैंकर्स हैं या जो डिपॉजिटर्स हैं वो दोनों सेटिस्फाई हो सकते हैं. They say that credit should not be ascribed in any way as being the child of interest. वो कहते हैं कि क्रेडिट जो है उसको कभी भी ऐसे ascribe नहीं होना चाहिए जिसको इंटरेस्ट का चाइल्ड कंसिडर किया जाए. As bank's ability to create credit is independent of the terms and conditions on which it is created. चूंकि जो बैंक की एबिलिटी है क्रेडिट क्रिएट करने की वो इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन से बालातर है कि इसको कैसे क्रिएट किया जाए. All Islamic economists, however, realize that interest is the villain, and if a measured amount of credit and money is generated in the market without the involvement of interest, it may not be harmful for the financial and payment systems. तो जितने भी इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं वो इस चीज को समझते हैं कि अगर पैसा जनरेट किया जाता है इंटरेस्ट के बगैर तो ये किसी इकोनॉमिक सिस्टम को हर्ट नहीं करता बल्कि ऑफ कोर्स इसको फ्लरिश करने में हेल्प आउट करता है. Abolition of interest will to a large extent curtail the harmful features of the creation of credit by banks. अगर इंटरेस्ट को खत्म कर दिया जाए तो ये कर्टेल करेगा इसके हार्मफुल फीचर्स को जो कि बैंक्स के क्रेडिट क्रिएट करने से हो सकते हैं. They argue that the crucial question with regard to the causation of trade, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो क्रूशल सवाल है इस ट्रेड के कॉजेशन के साइकिल के साथ इज रिलेटेड टू द रोल ऑफ इंटरेस्ट. ये रोल ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिलेट करता है इन सच अ क्रेडिट सिस्टम एंड नॉट क्रेडिट क्रिएशन एज सच. जो कि क्रेडिट सिस्टम से रिलेट करता है वो क्रेडिट ऑफ कोर्स क्रिएशन के साथ रिलेट नहीं करता. अंडर एन इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम the entrepreneur has to aim at a rate of profit which may be 3 times as high as the rate of interest or even higher. इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर एक एंटरप्रेन्योर जो है उसका एम ये होगा कि वो अपना रेट ऑफ प्रॉफिट कम से कम 3 गुना ज्यादा रखे उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो कि ऑफ कोर्स उसको पे करना है, तो उसका अपना रेट ऑफ प्रॉफिट जो है उससे कहीं हद तक ज्यादा होना चाहिए, 3 टाइम्स या इससे भी इवन ज्यादा. This high pitching of profits forces him to either raise the price of the product or lower the wages of labor. ये जो हाई पिचिंग है जहां पर वो अपना प्रॉफिट ज्यादा करना चाहता है वो ऑफ कोर्स उसको फोर्स करेंगे कि या तो वो प्राइस को इंक्रीज कर दे या जो लोगों को पैसा उसने देना है या जो लेबर चार्जेस देने हैं वो डिक्रीज कर दे. Whatever proportion is assigned to either of the alternatives, effective demand is slashed. इनमें से कोई भी वो ऑप्शन लेता है ऑफ कोर्स उसके साथ रिजल्ट क्या होगा कि जो आपकी इफेक्टिव डिमांड है वो स्लैश हो जाएगी. द रेमेडी सजेस्टेड बाय दीज इकोनॉमिस्ट्स रिकमेंड्स रीशेपिंग द क्रेडिट स्ट्रक्चर. रेमेडी जो कि ये इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं या रिकमेंड करते हैं वो क्रेडिट स्ट्रक्चर को रीशेप करने की बात करते हैं सो दैट लोन्स सीज टू कमांड एनी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स गेट रिड्यूस्ड टू द
लेवल वेयर दे पे ओनली फॉर द लेबर ऑफ द एंटरप्राइज। तो वो क्रेडिट स्ट्रक्चर को रीशेप करने की बात करते हैं ताकि लोन्स जो हैं वो सीज हो जाएं इंटरेस्ट को कमांड करने पर, और जो प्रॉफिट्स हैं वो भी रिड्यूस करें इस लेवल को ताकि लेबर्स को प्रॉपर पे किया जा सके और प्राइसिंग भी जो है वो अप्रोप्रिएट हो। अंडर अ शिरका बेस्ड इंटरेस्ट फ्री सिस्टम, शिरका बेस्ड इंटरेस्ट फ्री सिस्टम के अंदर it should not be difficult to conclude that possibilities for over expansion will be sufficiently limited। शिरका बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो कि इंटरेस्ट फ्री सिस्टम है, इसमें मुश्किल होगा कंक्लूड करना, शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू कंक्लूड, ये मुश्किल नहीं है कंक्लूड करना कि पॉसिबिलिटीज ऑफ ओवर एक्सपेंशन जो है ये सफिशिएंटली लिमिटेड होती हैं, स्पेशली एज द लायबिलिटी टू लॉसेस इज अटैच्ड टू द बैंकिंग सिस्टम, स्पेशली वहां पर जहां पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन या लायबिलिटी ऑफ लॉसेस जो है उसको अटैच कर दिया जाए बैंकिंग सिस्टम के साथ। द क्रिएटर ऑफ क्रेडिट, जो कि क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। द रिलेशनशिप ऑफ एन इस्लामिक बैंक विद इट्स क्लाइंट्स इज दैट ऑफ अ पार्टनर। इस्लामिक बैंक का अपने क्लाइंट्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो एक पार्टनर का रिलेशनशिप है। इन्वेस्टर और ट्रेडर, इन्वेस्टर या ट्रेडर का है, एंड नॉट ऑफ अ क्रेडिटर और डेटर। इसका ना तो क्रेडिटर का ना ही डेटर का रिलेशनशिप है एज इन अ कन्वेंशनल बैंक। तो एक और बात भी यहां पर बड़ी खूबसूरत है कि जो रिश्ता है इस्लामिक बैंक का अपने क्लाइंट के साथ, ये कन्वेंशनल बैंक की तरह का नहीं है। कन्वेंशनल बैंक का क्या होता है कि वो एज ए डेटर या क्रेडिटर होता है, लेकिन यहां पर इस्लामिक बैंक का जो ताल्लुक है या जो रिश्ता है अपने क्रेडिटर्स के साथ, ये या तो एज ए पार्टनर होता है या फिर एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर होता है। तो इस्लाम लेज स्ट्रेस ऑन इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इस्लाम स्ट्रेस करता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है ये बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए, एंड लॉस बिटवीन कैपिटल एंड एंटरप्राइज दैट शुड बी बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट। इस्लाम कहता है कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग है, इट शुड बी ऑन इक्विटेबल बेसिस बिटवीन कैपिटल एंड एंटरप्राइज, कैपिटल और एंटरप्राइज के दरमियान, जो कि म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ मूव करना चाहिए। वर्किंग अलोंग दीज लाइन्स, the Islamic commercial banks will be creating credit as their counterparts do in the present system। इन लाइंस पे काम करते हुए जो इस्लामिक कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं जैसे उनके काउंटर पार्ट्स क्रिएट करते हैं प्रेजेंट सिस्टम के अंदर। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द बैंक्स डिपेंड्स ऑन द पब्लिक हैबिट ऑफ कीपिंग देयर इनकम एंड सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ देयर पेमेंट्स थ्रू चेक्स। ये जो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है बैंक्स की, ये डिपेंड करता है लोगों की आदत के ऊपर कि अपनी इनकम को वो एज ए सेविंग और अपनी सेविंग्स को बैंक डिपॉजिट्स के तौर पे रखते हैं, या अपनी मोस्ट ऑफ देयर पेमेंट्स जो हैं वो थ्रू चेक्स करते हैं। अब ऑफ कोर्स इनकी इनकम जो है या जो बैंक्स हैं उनमें क्रेडिट क्रिएशन कैसे इंश्योर हो सकती है कि लोगों की कितनी आदत है कि वो अपना पैसा बैंक्स के पास रखें और जो पेमेंट्स करें वो थ्रू चेक्स करें। This enables the bank to meet public demand for cash by keeping a fractional reserve against their deposits। ये enable करता है किसी भी बैंक को ताकि वो पब्लिक डिमांड को मैच कर सकें कैश के साथ एक फ्रैक्शनल रिजर्व रखने के बाद। The overall volume of credit fluctuates as banks cash reserves change due to change in the public demand for cash or the central bank's policies। ये जो ओवरऑल वॉल्यूम है क्रेडिट का ये फ्लक्चुएट करता है जैसे ही बैंक या कैश रिजर्व चेंज होते हैं ड्यू टू चेंज इन पब्लिक डिमांड में की जो कैश की डिमांड है वो चेंज होने की वजह से या सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज चेंज होने की वजह से। सो नाउ द फोर्थ स्टेप इज करेंसी रेट फ्लक्चुएशन एंड सेटलमेंट ऑफ डेट्स। ये जो करेंसी रेट्स की फ्लक्चुएशंस है और सेटलमेंट ऑफ डेट्स जो है ये क्या रोल प्ले करती है इन मनी मॉनेटरी पॉलिसी एंड इस्लामिक फाइनेंस में। इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट डेट्स रिसीवेबल्स बाय वे ऑफ ट्रेड एंड लीजिंग बेस्ड मोड्स। इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये डेट या रिसीवेबल्स क्रिएट करते हैं ट्रेड के थ्रू या फिर लीजिंग बेस्ड मोड्स के थ्रू। What impact inflation has on their receivables is an area of important discussion। इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट होता है इनके रिसीवेबल्स पर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि होनी चाहिए। बिफोर डेलिब्रेटिंग अपॉन द शरिया पोजीशन ऑफ लिंकिंग द डेट्स विद एनी मनी और अ कमोडिटी
इससे पहले कि हम डेलिबरेटली शरिया पोजीशन के बारे में बात करें कि कैसे वो डेट्स को रिलेट करती है पैसे या कमोडिटी के साथ, इट इज पर्टिनेंट टू ऑब्जर्व दैट इवन इन कन्वेंशनल फाइनेंस indexation is not normally used to make up the loss occurring due to inflation. ये बहुत बेहतर होगा यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि जो कन्वेंशनल फाइनेंस है, इवन इन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा मेंशन करना कि इवन कन्वेंशनल फाइनेंस के अंदर ये जो इंडेक्सेशन है ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती टू मेक अप द लॉस अकरिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन, कि जो लॉस इन्फ्लेशन की वजह से हो रहे हैं उनको कवर अप किया जाए. कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस रादर मेक अ प्रोविजन फॉर अ फ्लोटिंग रेट इन द एग्रीमेंट्स. जो कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये या तो प्रोविजंस बनाते हैं फ्लोटिंग रेट की अपनी एग्रीमेंट्स के अंदर, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ताकि जो फ्यूचर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके. जैसे जो है वो काइबोर प्लस रेट डिसाइड होता है कि एक बेसिक फिक्स्ड फैक्टर ले लिया और बाकी जैसे जैसे आपकी कुछ फैक्टर्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे वो आपका एक फ्लोटिंग रेट जो है वो जनरेट होता जाएगा. ये फिक्स्ड रेट के ऊपर बात नहीं होती. एज सच एनी न्यू रेट इज अप्लाइड ऑन द रिमेनिंग पीरियड while it does not affect the liability already occurred. एज सच कोई भी जो नया रेट अप्लाई होता है बाकी रिमेनिंग पीरियड के ऊपर वो उस पर अप्लाई नहीं होता जो ऑलरेडी अक्रू हो चुका है. Islamic banks are not allowed as a rule to link any debt or receivable for the purpose of indexation. इस्लामिक बैंक में इजाजत नहीं है कि वो लिंक कर सकें डेट या रिसीवेबल को पर्पज ऑफ इंडेक्सेशन के साथ. इन सर्टन मोड्स और प्रोडक्ट्स however they are allowed to stipulate a floating or variable rate. लेकिन कुछ मोड्स या प्रोडक्ट्स के अंदर इसकी इजाजत है कि उनको स्टिपुलेट किया जा सकता है एक फ्लोटिंग या वेरिएबल रेट के साथ. बट दिस डज नॉट इफेक्ट एनी डेट लायबिलिटी ऑलरेडी क्रिएटेड. लेकिन ये इफेक्ट नहीं करता किसी भी डेट लायबिलिटी के ऊपर जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल इन इजारा इस्लामिक बैंक्स कैन चार्ज रेंटल एट अ हायर रेट. मिसाल के तौर पर जैसे इजारा के अंदर इस्लामिक बैंक्स चार्ज कर सकते हैं हाई रेट ऑफ रेंटल इफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर इन द एग्रीमेंट, अगर ऑलरेडी इन्होंने एग्रीमेंट के अंदर मेंशन किया था. फॉर एनी रिमेनिंग पीरियड ऑफ द लीज, किसी भी रिमेनिंग पीरियड ऑफ लीज के लिए, बट द रेंटल्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड वंस अक्रूड कैन नॉट बी इंडेक्स्ड. तो क्या बात करें कि इस्लामिक फाइनेंस के अंदर भी कुछ मोड्स के अंदर इसकी इजाजत होती है कि आप वेरिएबल रेट लेकर चलें. तो जैसे इजारा या लीज के अंदर आप हाई रेंटल्स चार्ज कर सकते हैं अगर पहले से एग्रीमेंट के अंदर आपने ये बात मेंशन की थी. लेकिन जब आप हाई रेंटल्स चार्ज करेंगे तो जो वक्त गुजर चुका है उसके ऊपर वो हाई रेंटल्स अप्लाई नहीं होंगे, ये जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ लीज है उसके ऊपर अप्लाई होंगे. तो जो आपका रिमेनिंग पीरियड है वो उसमें इंडेक्स नहीं होगा, सॉरी जो आपका अक्रूड पीरियड है वो उसमें इंडेक्स नहीं होगा. Here we shall give only a brief overview of the Sharia position on indexation. यहाँ पे हम बिल्कुल एक ब्रीफ सी बात करेंगे शरिया पोजीशन वो इंडेक्सेशन के ऊपर क्या लेती है. The clear injunctions of the Holy Quran and Sunnah reveal that if the financial contribution takes the form of a loan or a debt, it is to be paid back exactly in the same kind and quantity. क्लियर इंजेक्शंस अवेलेबल हैं होली कुरान और सुन्नत के अंदर जो कि रिवील करती हैं कि जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, अगर कोई भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो इन द फॉर्म ऑफ लोन या डेट के ऊपर, तो इट इज टू बी पेड बैक एग्जैक्टली इन द सेम काइंड एंड क्वांटिटी. तो ये पे बैक होगी एग्जैक्टली सेम काइंड में और सेम क्वांटिटी में, irrespective of any change in the value of the concerned currency or price. इस चीज से बिल्कुल बालातर होकर, कता नजर होकर कि कोई भी चेंज आ रहा है उस कंसर्न करेंसी के अंदर या प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेंट और बोरोड, या उसकी प्राइस में जो कि लेंट की गई या फिर बोरो की गई एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ द लोन, जब लोन को वापस किया जा रहा है उस वक्त. दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर लोन्स एंड डेट्स बट ऑल्सो फॉर क्रेडिट. ये असूल एप्लीकेबल है सिर्फ लोन या डेट के ऊपर नहीं बल्कि क्रेडिट के ऊपर भी, बार्टर के ऊपर भी, डेफर्ड एक्सचेंज ऑफ करेंसी के ऊपर भी, डिलेड पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन के ऊपर भी, आफ्टर डिवैल्यूएशन ऑफ और रिवैल्यूएशन के ऊपर भी, इंडेमनिटी एंड अ चेंज इन द यूनिट ऑफ करेंसी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द लोन. रिडेम्पशन ऑफ द लोन के वक्त अगर कोई इंडेमनिटी आ रही है
चेंज इन यूनिट करेंसी की वजह से, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो ये रूल कहां कहां पर अप्लाई होता है? दिस इज एप्लीकेबल ऑन लोन्स एंड डेट्स, क्रेडिट के ऊपर, बार्टर के ऊपर, डेफर्ड एक्सचेंज ऑफ करेंसी के ऊपर, डिलेड पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन आफ्टर डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, indemnity and a change in the unit of currency at the time of redemption of the loan, इन तमाम चीजों के ऊपर। However, if the currency of the debt becomes extinct or is not available for any reason, लेकिन अगर जो करेंसी जो कि डेट के अंदर थी वो अगर अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, its counter value will be paid to repay the debt, इसकी जो काउंटर वैल्यू है वो रीपे की जाएगी एज अ डेट, एंड द रेट विल बी दैट ऑफ द ड्यू डेट, और रेट वही अप्लाई होगा जो उस ड्यू डेट के ऊपर अप्लाई होता था। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रेडिट सेल एग्जीक्यूटेड ऑन 1 जुलाई जनरेट्स अ डेट ऑफ 10 सऊदी रियाल्स पेबल ऑन 31 दिसंबर। एक क्रेडिट सेल की गई 1 जुलाई को जिसने जनरेट किया डेट को 10 सऊदी रियाल्स पर, जो कि 31 दिसंबर को पे होने थे। On the due date, that is 31st December, due date पर 31 दिसंबर को, the purchaser is liable to pay Saudi Riyal 10, irrespective of the Riyal's value in terms of any other currency. ड्यू डेट के ऊपर सऊदी रियाल 10 ही पे करने होंगे परचेजर को, इस बात से बिल्कुल बालातर होकर कि उस वक्त उसकी वर्थ क्या है। If the debtor is obliged to pay in rupees for any reason, अगर डेटर को पे करना पड़ता है रुपीस के अंदर किसी भी रीजन की बेसिस पर, तो द एक्सचेंज रेट विल बी दैट विच इज प्रिवेलिंग ऑन 31 दिसंबर। तो एक्सचेंज रेट वो इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 31 दिसंबर को प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, बिकॉज ही वॉज लायबल टू पे सऊदी रियाल्स ऑन दैट डेट, चूंकि वो लायबल था पे करने का सऊदी रियाल्स को उस तारीख पर। अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, पर्टिकुलरली a depreciation of currency is normally termed inflation. ये जो change of value of money की हम बात करते हैं, particularly जहां पर currency depreciate हो रही है उसको inflation बोलते हैं, is a general feature of most of present day economies. एक general feature है आज की बहुत सी economies का। The main cause of this depreciation is the unlimited creation of money and credit. इसका जो मेन कॉज है इस डेप्रिसिएशन का, ये अनलिमिटेड क्रिएशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट है, क्रिएटिंग लायबिलिटीज फॉर डेटर्स इन जनरल एंड हिटिंग फ्यूचर जनरेशंस इन पर्टिकुलर, जो कि लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं डेटर्स के लिए इन जनरल और फ्यूचर जनरेशंस को इफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेजर्स टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक जो हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कई मेजर्स ऑप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग इंडेक्सेशन ऑफ वेजेस एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस यूज्ड लार्जली इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इन द 1980s, जिनमें से इंडेक्सेशन ऑफ वेजेस और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो थी ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर 1980 में इख्तियार की जाती थी। बट दीज मेजर्स कुड नॉट कंट्रोल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन रोज इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज टू ओवर 2000% पर एनम। लेकिन इन मेजर्स से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सका और इन कंट्रीज के अंदर 2000% पर एनम ये इंक्रीज हुआ। अल्टीमेटली दे हैड टू रिवाइज द स्ट्रेटेजी, अल्टीमेटली उनको अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी पड़ी एंड अडॉप्ट पॉलिसीज अदर देन इंडेक्सेशन फॉर कॉम्बैटिंग इन्फ्लेशन, और उनको पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ी इंडेक्सेशन के अलावा इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए। In Islamic finance, it is also sometimes argued that indexation should be adopted to counter inflationary pressures, or that prepayments may be made after taking into account the impact of inflation on purchasing power of money. इस्लामिक फाइनेंस के अंदर ये भी बाज़-औक़ात कहा जाता है, आर्ग्यू किया जाता है कि जो इंडेक्सेशन है उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए एज अ काउंटर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और जो रीपेमेंट है वो इन अकाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन होना चाहिए जो कि परचेजिंग पावर के ऊपर आ रहा है। Experience has shown, however, that indexation is neither a substitute for interest nor has it been able to control the vagaries of inflation. Experience बताता है कि इंडेक्सेशन जो है ये ना तो सब्स्टिट्यूट है इंटरेस्ट का, ना ही ये कंट्रोल कर सकता है वेगरीज ऑफ इन्फ्लेशन को। द नास ऑफ द होली कुरान allows only the principal of a loan and debt and declares any addition over it as riba. In the presence of the nas, the idea of linking loans or debts to the purchasing power of money cannot be justified
on the basis of ijtihad, because ijtihad is carried out only where the guidance of the Quran and Sunnah does not exist. This approach is further discussed below. In the past, the value of bullion money was represented by its content. The value of D-based money or paper money is represented by official commitments rather than its physical content. During an inflationary period, the intrinsic characteristics of money, that is, its role as a medium of exchange and as a unit of account, remain intact. Only the relative characteristics change, that is, the future value of money in terms of its exchange value, but this has been changing since the introduction of money, even in respect of full-bodied coins. The value of silver dirhams depreciated in terms of gold dinars in the time of the early caliphate, but we do not find any reference in the whole literature on Islamic economics and finance to the concept of indexation in that era. Sheikh Taqi Usmani, as judge of the Shariat Appellate Bench, has also refuted the argument that interest is paid to compensate the loss that a lender suffers due to inflation. He nullified the suggestion that indexation of loans can be a suitable substitute for interest-based loans. In this respect, he says, but without going into the question whether indexation of loans is or is not in conformity with Sharia, this suggestion is not practical so far as the banking transactions are concerned. The reason is obvious. The concept of indexation of loans is to give the real value of the principal to the financier based on the rate of inflation. And therefore, there is no difference between depositors and borrowers in this respect. It means that the bank will receive from its borrower the same rate as it will have to pay to its depositors, both being based on the same measure, that is, the rate of inflation. Thus, nothing will be left for the banks themselves, and no bank can be run without a profit. The learned justice has admitted the problems created by inflation and has also referred to various suggestions given by different quarters for solving the problem. With regard to the impact of change in the purchasing power of any currency on a debt, the OIC FIC Council in its 15th session, 10 to 15 December 1988, resolved the following. It is significant that a fixed debt is repaid in its own currency and not by its counter value, because debts are settled in the same currency. Thus, it is not permitted to attach fixed debts, whatever their source, to currency fluctuation is. तो यहाँ तक बात थी हमारी विद रिस्पेक्ट टू मनी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इस्लामिक फाइनेंस, और हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर भी बात की. तो आज यहाँ तक ही रखते हैं. उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा. हम लोगों ने मल्टीपल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए मनी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इस्लामिक फाइनेंस के, जिसके अंदर मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखा कि कहाँ कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पैसा, मॉनेटरी पॉलिसी और इस्लामिक फाइनेंस आपस में कॉन्ट्रैडिक्ट करते हैं या कहाँ कहाँ पर एक दूसरे के साथ मैच करते हैं. तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.